Okay, so we start from where we left in the last lecture, and we start from the long-term memory. Okay, so chunking and the long-term memory. So what is chunking? We remember that if we have a long list of events, or if we have a lot of numbers to remember, we group them. And whenever we group them, it is easier to remember. Like 483792516 is a very long number, but if we chunk it like 483792516, as in your ATM card, as in your credit card, as of your IBAN number of the bank, they group it, and when they group it, it is very easy to remember. Okay, so chunking is one of the way by which you can remember the numbers or any event or anything. Long-term memory, I already told you that once the information passed from the sensory and working memory, your working memory means your short-term memory, it entered or encode into the long-term memory. While like you store it in the long-term memory, and we remember that there are two types of memory: the implicit memory and the explicit memory. So its function is to organize, store information, unlimited capacity. You can store anything. Duration thought to be sometimes permanent. And you have remembered sometimes the long-term memory for a lifetime. Encoding process that controls the movement from working to long-term memory store means like whatever you are doing. Like, did you remember all of the guys that when we start our online lectures, did you remember that when we start our online lecture? Yes, and I was not able to take your first, or I think first lecture, because I was sick. So this is the memory which is encoded in my brain, and I will never forget. Hopefully for the lifetime I will never forget. Retrieval, the process that control flow of information from long term to working memory. Yes, that's it. What I'm doing now, I'm retrieving that we start from 1st June, and on 1st June or the 2nd June, whatever, I have a lecture and I missed it because I was sick. So this is called the encoding and the retrieval. Automatic versus effortful. Automatic processing, unconscious encoding of the information. Automatically. What did you eat for lunch today? It is automatically stored. Was the last time you studied during the day or the night? You know the meaning of these very words you are reading. Are you actively trying to process the definition of the words? Means ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली एनकोड हो रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें एनकोड करके याद रखना पड़ता है। जैसे आपके आज के नोट्स, आज के नोट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद नहीं होंगे, बल्कि आपको याद रखने पड़ेंगे कि सर ने आज क्या कराया था। व्हाट माय पॉइंट, आपको जो है कोई फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से बार बार आ रहा है कि दिस लेक्चर इज टेकन फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसलिए आ रहा है। रिपीटिंग अ फोन नंबर इन योर हेड अंटिल यू कैन राइट इट डाउन। आपको अगर मैं अभी कोई नंबर बताता हूँ, बार बार इसको याद करते रहोगे, तो ये एफर्टफुल है। फिर हमने बताया कि दो तरह की मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है जो कॉन्शियसली रिकलेक्ट हो जाए और कैन नॉट बी कॉन्शियसली रिकॉल्ड, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी। डिक्लेरेटिव और कॉन्शियस मेमोरी में जो है वो एक्सप्लिसिट आती है। और जैसे कि हम मिसाल दें आपको, अच्छा फिर एक्सप्लिसिट भी दो तरह की है, एपिसोडिक और सीमेंटिक। एपिसोडिक क्या है? आपकी बर्थडे कब थी, वही बात हमने कब फर्स्ट ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, 1 जून को। ये क्या है? आपकी एपिसोडिक है। मैं क्यों क्यों नहीं ले सका था फर्स्ट क्लास, ये एपिसोडिक है। ठीक है, अच्छा। जबकि सीमेंटिक क्या है? आपको मैं पूछूं कि हाउ मेनी टायर्स इन योर कार, चार। डू यू हैव अ स्टेपनी? यस। आपको मैं पूछूं कि आपके फोर फादर्स का नाम क्या है?
सिमेंटिक है, आपको याद होगा। आपको पूछोगे व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, तो आसान आसान चीजें। सो दीज आर द सिमेंटिक जिसको हमें याद रखने की, एनकोड करने की जरूरत नहीं है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इज डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट इज नॉन डिक्लेरेटिव। एक्सप्लिसिट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। एपिसोडिक में जिसको आप किसी एपिसोड से याद करते हो। Implicit non-declarative memory influences your thoughts or behaviors but does not enter the consciousness। यानी कि आपके गुस्से को, आपके रेज को, आपके अफसोस को, आपकी सैडनेस को वो जो है वो याद रखेगा। इन्फ्लुएंस योर थॉट्स और बिहेवियर बट नॉट एंटर द कॉन्शियसनेस। आपको कॉन्शियस फंक्शंस नहीं होंगे आपके। अगर कोई पुरानी बात जो अफसोस वाली हो याद आती है, तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए उदास हो, तो बिहेवियर चेंज हो जाए, बट आपके कॉन्शियसनेस लेवल और आपके फिजिकल फंक्शंस चेंज नहीं हो सकते। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। प्रोसीजरल मेमोरी, अच्छा एक और मेमोरी की टाइप है, जैसे कि इसको हम इम्प्लिसिट में भी डाल सकते हैं। मेमोरी दैट enables you to perform specific learned skill or habitual response. Riding a bike, using a shift stick while driving, tying your shoelaces. Why these procedural memory implicit? Do क्या है? Do not have a consciously remember the steps involved in these actions to perform. Automatically हो रहा है, एक तरीके हम ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं इसको। मेमोरी किस तरह ऑर्गेनाइज होती है? मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में। एक खाने बने हुए हैं, बिहेवियर का खाना, कॉन्शियस का खाना, अनकॉन्शियसनेस का खाना। एक जो है बना हुआ है एक बॉक्स आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी का, एक बॉक्स सिमेंटिक मेमोरी का। यानी कि ये आपके क्या बने हुए हैं? आपके क्लस्टर्स बने हुए हैं। अब इस एग्जांपल सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल देखो, कितनी सारी चीजें हैं। आपके कार आपकी सिमेंटिक है। आपको ऐसी चीजें जो कि याद रहने वाली, इनको भूलना नहीं है। हाउस, फायर, चेरी, एप्पल, पियर, फ्लावर, ये तो कुछ चीजें हैं। ऐसे हजारों लाखों चीजें हमारे सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर्ड हैं, कि जब कभी भी जैसे ही उनके बारे में कुछ कहा जाता है, ऑटोमेटिकली हमें वो बगैर किसी एफर्ट के सामने आ जाता है। व्हाट डू वी फॉरगेट? ये देखो, मैंने अभी बताया कि जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज टू मच, दैट इज टू मच। हमें कोई भी काम करें, मैं आपको बोलूं कि आप एग्जांपल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए, एक असाइनमेंट बनाए मेमोरी के ऊपर, और मेमोरी के बारे में जितनी चीजें वो लिखें। सो आप मेमोरी के बारे में लिखने के लिए बहुत सारी कलेक्शन करोगे ना, इनपुट्स आएंगे आपके पास, देन उन इनपुट्स को आप वर्क करोगे, तो ये आपके एक तरीके होगी सेंसरी मेमोरी, देन वर्किंग मेमोरी। फिर आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, आप एनकोड कर दोगे कि मैंने यार ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये था। और फिर आज से 2 साल बाद मैं आपसे पूछूंगी यार आपने मेमोरी पे एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, कुछ याद है? आप रिट्रीव करोगे, मे बी पॉसिबल है कि आप बहुत कम चीजें उसको रिट्रीव कर सकते हो। सो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड हाउ वी कैन रिट्रीव दिस मेमोरी। फॉरगेटिंग, आप कभी भी भूल सकते हो, या तो एनकोडिंग में प्रॉब्लम हो जाए या रिट्रीवल में प्रॉब्लम हो जाए। आई टेक अ मिनट बिकॉज अजान हो रही है।
ओके, सो हम बात कर रहे थे, मैंने ये आपको इस दौरान में लिख के दे दिया कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। मेमोरी याद रखना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी याद रखना है, हाउ वी एनकोड, हाउ वी रिट्रीव, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, फिर इम्प्लिसिट में फिर जो है वो दो तरह की है, सिमेंटिक और एपिसोडिक, ये सब चीज़ें याद रखनी है। रिट्रीवल क्या है? रिट्रीवल इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, और समटाइम्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी बट वी कैन नॉट रिट्रीव इट। कभी कभी ये लॉन्ग टर्म में स्टोर्ड हो जाती है, हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भूल गए, फॉरगेटिंग, हो सकता है वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो सकते हमें इंपोर्ट करते हो सही याद ना किया हो। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो आगे हम चलते हैं। कुछ मेमोरीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म की ही टाइप्स हैं, एंड लॉन्ग टर्म की टाइप्स में जो है हम उसको कहते हैं फ्लैश बैक मेमोरी या फ्लैश बल्ब मेमोरी। रिकॉल ऑफ वेरी स्पेसिफिक इमेज और डिटेल्स about a vivid, rare or significant event may seem very vivid and specific, but they are not more accurate than the ordinary memories. किसी को याद है ऐसी मेमोरी? अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इवेंट ऐसा हुआ हो जो कि खतरनाक हो, या ऐसी कोई चीज जो वो याद करता है तो उसको लगता है जैसे वो वहीं चला गया है, फ्लैश बैक में चला गया है, उसके दिमाग में वो चीज एकदम से सामने आ जाए, जैसे लगता है कि हमें स्क्रीन पे वो चीज नजर आ रही है। डिड यू एवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस? अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई भी चीज, तो हमें वो फ्लैश बल्ब में चली जाती है, ठीक है ना। सो ऐसी मेमोरी भी होती है, वो भी लॉन्ग टर्म ही है, वो भी लॉन्ग टर्म है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, उसको आप रिट्रीव कर रहे हो, वो विविड होती है, स्पेसिफिक होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है उसमें हमारी इमेजिनेशंस भी शामिल हो जाती है, ऐसा होता है, उसमें हमारी इमेजिनेशन जो हुआ कुछ और होता है और साथ में कुछ और एडिशंस भी हो जाते हैं विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस या लोगों की बातें सुन के, जिसे हम कहते हैं फ्लैश बैक मेमोरी। ये साहब थे कार्ल लेशले, उन्होंने कहा कि जी मेज लर्निंग इन रैट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रेन। अब कहते हैं मेमोरी कहाँ है, किसी एक जगह पे, कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरी जी है वो हिप्पोकैम्पस में पड़ी है, कुछ कहते हैं कि मेमोरी सेरिबैलम में पड़ी है, मगर मेमोरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। Richard Thompson found that the memory of simple classically coordinated response were localized in the cerebellum। तो different biological bases है। एक कंडीशन है जिसमें अगर मेमोरी का लॉस हो जाए तो उसे हम कहते हैं एमनेसिया। एक कंडीशन है जिसमें अगर पर्सन इनएबिलिटी टू रिमेंबर द पास्ट एपिसोडिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कॉमन आफ्टर हेड इंजरी नीड फॉर कंसोलिडेशन, तो उसे कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया। ये अक्सर फिल्मों में होता है कि जी सर पे चोट लग गई हीरो की और हीरो जो है वो पुरानी याददाश्त भूल गया, सो दैट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड एमनेसिया। Anterograde amnesia, inability to form new memories related to hippocampus damage। अब आज जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मेमोरी में जाना चाहिए ना, मगर अब ये काम मेमोरी में नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पल डैमेज, जिसे कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। सो एमनेसिया इज ऑफ टू टाइप्स, रिट्रोग्रेड एमनेसिया और एंटीरोग्रेड। फिर एक वर्ड आता है डिमेंशिया, उसमें क्या होता है, वो भी मेमोरी लॉस है और उसे हम कहते हैं सेनाइल डिमेंशिया। अक्सर ओल्ड एज के साथ हिप्पोकैम्पस की श्रिंकेज हो जाती है। So these are the things which we have to discuss in the memory। ठीक है, मैं नया लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, वह बहुत क्विकली नजर आ रहा है ये वाला लेक्चर नया स्लीप का, मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। स्लीप लेक्चर नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो स्लीप शुरू करूँ? ओके, स्लीप क्या है? व्हाट इज स्लीप? इज a temporary physiological state of unconsciousness। स्लीप एक तरीके की अनकॉन्शियसनेस from which the person can arouse by sensory stimuli। आप किसी को आवाज दोगे वो उठ जाएगा, आप किसी का पाँव हिलाओगे वो उठ जाएगा, आप किसी को जोर से जगाओगे वो उठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लीप। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी और इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि रीसेंट पास्ट, recent past and then it will become a, अगर आपको बहुत पुरानी चीज हो जाए, so
initially for working short term, for recent past is a long term, and then it's converted to long term finally. So intermediate is not a कोई बहुत border line नहीं है, but it is a memory type आप कह सकते हो, क्योंकि फिर वो लॉन्ग इंटरमीडिएट से लॉन्ग टर्म जाने में भी कभी कभी हम चीजें भूल जाते हैं, एनकोड नहीं करते, ठीक है. So sleep is a temporary physiological state of unconsciousness from which the person can be aroused by sensory stimuli. If we do an EEG, अब आप कह रहे हो कि अगर मैं एक आदमी सो रहा है, मैं उसके सर के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के उसकी EEG चेक करना चाह रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी तरीके की EEG वेव्स नजर आएंगी, जिसके ऊपर आप कहोगे कि वो किस स्टेज ऑफ स्लीप में है. तो ये होता है जब किसी का हमें मेंटल स्टेटस मालूम करना होता है, जब किसी का हमें साइनेप्टिक कंडक्शन मालूम करनी होती है, जब बच्चे फिट्स में आ रहे होते हैं हमारे पास, जब लोगों को एपिलेप्सी हो रही होती है, तो हम उनकी ईईजी करते हैं ड्यूरिंग अवेकफुलनेस और ड्यूरिंग स्लीप. वो फर्क है, वो हम ईईजी के लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ेंगे. कॉमा उसकी ऑपोजिट है. कॉमा का मतलब ये है कि आप, वो भी बंदा सो रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मगर इसमें आप उठा नहीं सकते हो बंदे को, किसी सेंसरी स्टिमुलाई से अराउज नहीं कर सकते हो. ओके. So EEG in coma is generally unreactive and there are several EEG patterns of coma. तो EEG अगर आप करोगे तो उतनी reactive नहीं मिलेगी जितनी sleep में मिलेगी. However, the medical student is required to know that the commonest EEG pattern of coma is continuous slow waves. मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते. दो तरह की वेव्स हैं, दो तरह की स्लीप है. एक है स्लो वेव स्लीप, जिसे हम कहते हैं नॉन रैम स्लीप या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. तो स्लो वेव स्लीप को हम क्या कहते हैं? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. वर्ड क्या शो कर रहा है? नॉन रैपिड आई. सो इससे आपके दिमाग में एक बात आती है कि क्या आंखें मूव करती है जब हम सोते हैं? जी हाँ, व्हेनेवर वी स्लीप हमारी आंखें बंद होती है मगर अंदर वो मूव कर रही हो. सो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एक ऐसी स्लीप है जिसमें के इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द रैपिड आई मूवमेंट. तो जब नॉन रैपिड में आंख मूव नहीं करती है, तो फिर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आंख क्या करेगी? मूव करेगी. Because in this type of sleep, the person make rapid movement by his eyes in spite of the fact that he is sleeping. मेरी बात समझ में आई कुछ? स्लीप कितनी तरीके की है? दो तरह की, स्लो वेव और नॉन रैम और रैम. स्लो वेव, अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. स्लीप क्या है? सबसे पहले sleep is a state from which state of unconsciousness from which the person can be aroused by any sensory stimuli. आप सो रहे हो ना, आपको मैं आके जोर से धक्का मारूंगा आप उठ जाओगे, आपके पाँव को हिलाऊंगा आप उठ जाओगे, आपको शायद आवाज दूं तो आप उठ जाओगे. दिस स्लीप. एंड कॉमा क्या है? पर्सन कैन नॉट बी अराउज्ड बाय एनी सेंसरी स्टिमुलाई. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड कॉमा. एक बात तो ये समझो, स्लीप दो तरह की है. स्लो वेव स्लीप जिसे हम कहते हैं नॉन रैम, और दूसरी है रैम स्लीप. सो नॉन रैम एंड रैम. नॉन रैम को हम स्लो वेव भी कहते हैं. नॉन रैम वर्ड शो कर रहा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैम वर्ड शो कर रहा है रैपिड आई मूवमेंट. तो आप दो तरह से डिवाइड करो कि एक वो स्लीप जिसमें आंखें मूव नहीं करती हैं, और एक वो स्लीप जिसमें अंदर आंखें आपकी मूव कर रही होती हैं हालांकि आप सो रहे हो. सो दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्लीप. आप समझ में आया अपराध? कितनी तरह की स्लीप है? दो तरह की. कौन कौन सी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? रैम और नॉन रैम. गुड. रैम में क्या होगा? आईज मूव करेंगी. नॉन रैम में आईज मूव नहीं करेंगे. नॉन रैम का दूसरा नाम क्या है? नॉन रैम का दूसरा नाम क्या है? स्लो वेव स्लीप. गुड. अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक पर्सन की स्लीप पैटर्न है.
7 से 8 घंटे वो सो रहा है आपके, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो पूरी ड्यूरेशन है ना, अभी यहाँ से ही मैं गिन लेता हूँ, ये पूरी ड्यूरेशन 1 घंटे में, ये पूरी स्लीप है। अब स्लीप में आपके जो स्टेजेस आते हैं वो इस तरह आते हैं कि जैसे आदमी सोता है ना तो वो पहले स्लो वेव स्लीप में जाता है, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। मैं आपको यूँ कहूँ कि आप ये समझो कि ये स्टेजेस हैं कि आदमी कितनी गहरी नींद सो रहा है, एक आम तौर पे समझने के लिए। स्टेज 1 में होगा तो कम गहरा होगा, स्टेज 2 में ज़्यादा गहरा होगा, स्टेज 4 में बहुत गहरा होगा। फिर क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद, ये आदमी थोड़ी देर के लिए नॉन रैम में जाता है। नॉन रैम में जाता है इसका मतलब है कि उसको, उसकी अगर आप उसको उस वक्त आंखें ऊपर उठा के देखो, चाहे उसकी आंखें मूव कर रही हो, उसकी टोन जो है आइस की बढ़ गई हो, ठीक है। फिर वो दोबारा स्लो वे में चला जाता है, तो ये आपका चलता रहता है। सो मैं पढ़ता हूँ इसको। वाइल स्लो वेव स्लीप ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द टोटल नाइट स्लीप, ज़्यादातर कौन सी स्लीप होती है? स्लो वेव, अराउंड 80%। इट इज इंटरप्टेड बाय इंटरवीनिंग रैम स्लीप आफ्टर एवरी 90 मिनट्स, तकरीबन 90 से 100 मिनट के बाद। अच्छा, जब पर्सन सोता है तो मैंने अभी बताया, पहले वो फर्स्ट स्टेज ऑफ रैम नॉन रैम में जाता है, फिर वो सेकंड स्टेज ऑफ नॉन रैम में जाता है, फिर वो थर्ड स्टेज में जाता है, फिर वो फोर्थ स्टेज में जाता है। इसका मतलब मैं यूं कहूँ कि पहले वो गहरी नींद सोता है, फिर वो और गहरी नींद सोता है, फिर वो और गहरी नींद सोता है, फिर वो और गहरी नींद। फाइनली जब स्लीप उसकी बहुत गहरी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए गोज इनटू फर्स्ट रैम स्लीप एपिसोड। तो पहला इसका एपिसोड आता है रैम स्लीप का, जिसमें उसकी आंखें मूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए रहती है रैम स्लीप, फिर आदमी दोबारा गहरी नींद सो जाता है। So about 90 minutes throughout 8 hours, so the night. Therefore, 4 to 6 sleep cycles. अब वो हर 8 घंटे अगर वो सो रहा है तो तकरीबन 100 मिनट बाद वो उठ रहा है, फिर 100 मिनट बाद वो रैम में जा रहा है, फिर 100 मिनट बाद वो रैम में, तो तकरीबन 6 से 7 साइकिल्स वो स्लीप की चलाता है। और उसमें 4 से 6 साइकिल्स, और वो 4 से 6 साइकिल्स में उसकी रैम स्लीप भी आती है। As the night goes on, there is a progressive reduction in stage 4 and stage 3, and progressive increase in REM sleep. In the young adults, slow waves occupies 75 to 80%, and the REM sleep is 20 to 25%. जवान आदमी जो है वो तकरीबन 80% नॉन रैम में होता है और 20% रैम में होता है। जबकि आगे की पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बच्चे होते हैं न्यूनेट्स, उनके अंदर कुछ ऑपोजिट चीज होती है। ये देखो, 6 इयर्स जो टोटल स्लीप ड्यूरेशन थी उसकी, वो 9 to 10 आवर्स थी। वो आदमी 30 साल का हुआ तो 6 to 7 आवर्स उसकी टोटल ड्यूरेशन हो गई। जो 21 साल का है तो उसकी तकरीबन 7 घंटे है। जैसे आप लोग तकरीबन 7 घंटे, मेरे ख्याल में तो आप लोग 10-12 घंटे सोते हो गए, ठीक है, जो लग रहा है मुझे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो नहीं कुछ, तो मेरे ख्याल में जो है वो 10-11 घंटे आप लोग सो रहे हो। मगर एक नॉर्मल 21 साल के पर्सन को 7 से 8 घंटे या 7 घंटे अप्रोक्सीमेटली सोना चाहिए। और जब वही आदमी 69 ईयर्स की एज का हो जाता है तो तकरीबन उसकी जो स्लीप ड्यूरेशन है वो कम होके 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली पूरे रह जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि रैम स्लीप ऑक्यूपाई 80% ऑफ द टोटल स्लीप टाइम इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स। जरा इस जुमले पे गौर करो, इस जुमले पे गौर करो कि 80% ऑफ द रैम स्लीप जो है न्यूनेट्स के अंदर, सॉरी कहाँ गया मेरा कर्सर, 80% ऑफ द स्लीप टाइम जो है वो न्यूनेट्स में क्या है, प्रीमेच्योर यूनिट्स में रैम है, और 50% क्या है, फुल टर्म में। चलो फुल टर्म की हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब है बच्चे ज्यादातर रैम में होते हैं, नॉन रैम में नहीं होते, वो गहरी नींद कम सोते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ रैम स्लीप फॉल्स rapidly and plateau at about 25% until fall further in old age। और रैम स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो जाती है, तकरीबन 25% तक रह जाती है, 50% से कम हो गया। यानी कि एक एडल्ट आदमी 25%, 20 से 25% रैम स्लीप में सोता है, ठीक है।
और उससे भी कम हो जाती है जब वो बूढ़ा होता है। चिल्ड्रन हैव मोर स्लीप टाइम एंड स्टेज 4 स्लीप देन द एडल्ट्स। और बच्चों में स्टेज 4, अच्छा चिल्ड्रन जो 6 साल 7 साल 8 साल, वो ज़्यादा सोते हैं और ज़्यादा गहरी नींद सोते हैं। तो बड़ी डिफरेंट रिसर्चेज हैं, कोई याद रखने की बात नहीं है, बट इफ़ यू रिमेंबर यूनिट्स ज़्यादा रैम में होते हैं, इसलिए हड़बड़ा के जल्दी उठ जाते हैं, हल्की सी आवाज़ से डर के उठ जाते हैं, इसको कहते हैं डर जाते हैं। जब बड़ा होता है आदमी तो रैम कम होती जाती है, गहरी नींद बढ़ती जाती है, और ये गहरी नींद स्टेज 4 की चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है। ठीक है। स्लो वेव स्लीप इज एक्सीडिंगली रेस्टफुल टाइप ऑफ स्लीप। इससे हमें क्या पता चला? ये जो नींद सही आती है वो स्लो वेव में आती है। It is typically exemplified in first hour of sleep that follow a prolonged period of sleep deprivation. जैसे आप 15-20 घंटे से सोए नहीं हो, 24 घंटे से सोए नहीं हो, और आप बहुत थके आ रहे हो और आप फौरन सोओगे, तो जो पहला घंटा होगा ना वो मार्वलस होगा आपका, और वो जो होगा बहुत ज़बरदस्त नींद होगी आपकी। फर्स्ट स्लो वेव का जो फेज होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज, अब जाहिर बात है जब आप गहरी नींद सो रहे हो तो आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर टोन थोड़ी कम हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, आपका बीएमआर कम हो जाता है, तो सब क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। Sometimes dreams, even nightmare occur during slow wave sleep. However, dreams are more characteristic of REM sleep. ज़्यादातर ख्वाब किस में आते हैं? रैम में। मगर स्लो वेव में भी ख्वाब आते हैं जो कि नाइटमेयर्स वगैरह अक्सर होते हैं। सो ख्वाब ज़्यादातर रैम में आएंगे, मगर स्लो वेव में नाइटमेयर्स आएंगे। अब रैम क्या है? पैराडॉक्सिकल, वक्फों से आती है, ऑपोजिट इनके होती रहती है। It is in a normal night of sleep, episode of REM sleep 5 to 30 minutes usually appear in average 90 minutes. REM sleep is not restful as slow wave. When the person is extremely sleepy, each episode of REM is short and may even absent. बहुत थके हुए हो, 2 दिन से नहीं सोए हो, गाड़ियां चला चला के थक गए हो, ड्राइविंग बहुत की है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो अब जो सोगे वो स्लो वेव होगी, रैम का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। There are several important characteristics of RAM. The rapid eye movement एक तो, और दूसरा मसल टोन कम हो जाएगी बॉडी की, मगर आई की मसल टोन मसल्स की बढ़ जाएगी। तो मुझे फर्क बताओ, स्लीप कितनी तरह की है? स्लीप हाउ मेनी टाइप्स? नाम जल्दी फटाफट नाम भी बता दे जो। ठीक है। ड्रीम्स किस में आएंगे? रैम में, नॉन रैम में? रैम क्या एनडी नॉन रैम में आएंगे, ठीक है। नॉन रैम में कौन से ड्रीम्स आएंगे? नाइटमेयर्स, गुड। नॉन रैम की ड्यूरेशन कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली? 80%, ठीक है, मगर ड्यूरेशन 90 मिनट। उसके बाद कितनी देर का रैम आएगा? 90 मिनट्स नॉन रैम है और 5 to 30 मिनट्स रैम है, याद रखना। रेस्टफुल कौन सी होती है? नॉन रैम होती है कि रैम होती है? रेस्टफुल, रेस्टफुल नॉन रैम, और लिटिल बिट नॉन रेस्टफुल जो होती है वो रैम होती है, गुड। ठीक है। रैम के अंदर ब्लड प्रेशर, बीएमआर, रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, बढ़ेगा? कम होगा, गुड, शाबाश। So despite the extreme inhibition of peripheral muscles, irregular body muscles activity do occur. Heart rate and respiratory rate usually become irregular. ये RAM की बात हो रही है. It is usually associated with active, sometimes vivid dreaming. The person is more difficult to arouse by sensory stimuli than during non-REM sleep, and yet people usually awaken spontaneously in morning during an episode of REM sleep.
and frequently remember bits and pieces of dream. The brain is highly active in REM sleep and overall brain metabolism may be increased at 20%. The EEG show a pattern of brain waves similar to this that of wakefulness. So रैम के अंदर जनाब आपको ख्वाब भी आएंगे, आप अचानक से उठ भी जाओगे, आपको बिट्स ऑफ पीसेस के ख्वाब याद भी रहेंगे। देखो ड्यूरेशन में रिपीट कर रहा हूँ 60 टू 100 मिनट्स है, मगर अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स होती है नॉन रैम की और 5 टू 30 मिनट्स रैम की होती है, यानी कि हर 90 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स का रैम का ड्यूरेशन आता है। बट ये डिपेंड करता है, किसी में रैम कम हो जाता है अगर वो बहुत गहरी नींद सो रहा है तो, ठीक है। Therefore, it is not surprising that the REM sleep is also called paradoxical sleep. The paradox being that although the person is asleep, the paradox is being that although the person is asleep, he may seem awake. आप इसकी EEG करोगे तो लग रहा है ये, अगर EEG दिखाओ बोलो ये बंदा जाग रहा है, मगर उसमें बंदा सो रहा है। In summary, REM sleep is a type of sleep in which the brain is quite active, but this brain, it is not aware, cut off the external world. Its activity is not channeled into a purposeful external motor activity. आप रैम में गाड़ी चला रहे हो ख्वाब में, मगर एक्चुअली आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। हो सकता है कभी कभी आपका हाथ पांव भी ऐसे चल जाता है, आप रैम में पहाड़ पे चढ़ रहे हो मगर रैम ओरिजिनली आप पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे हो, ठीक है। पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं है, आप कट ऑफ हो बिल्कुल दुनिया से, मगर आपका ब्रेन काम कर रहा है। क्या स्लो वेव में ड्रीम्स होते हैं? Slow wave dreams, if they occur, differ from those of REM sleep. REM sleep are vivid dreams. REM dreams are associated with more bad bodily muscle activity. The dreams of slow wave are not remembered usually on waking up. सर स्लीप वॉकिंग क्यों होती है? ये भी रैम की ही एक टाइप है। एक्सट्रीम ड्रीमिंग होती है उसमें। अच्छा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ना, ये बहुत थ्योरेटिकली है और बहुत ज़्यादा अगर याद नहीं भी रहती है तो कोई बात नहीं, 4 स्लाइड्स है थ्योरीज, ये गाइटन में भी इसी तरह लिखी हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर याद कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि जी अगर मैं ये कहूँ कि स्लो वेव स्लीप में ज़्यादातर रोल किसका होता है? सीरोटोनिन और रैप न्यूक्लियस का होता है। रैम स्लीप जो एसोसिएट होती है वो पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू होती है एंड जेनिकुलो ऑक्सीपिटल सर्किट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यानी खास बात नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन है। हार्मोन मेलेटोनिन जो है वो रिलीज होता है और इम्पॉर्टेंट रोल है डे नाइट इंटरटेनमेंट ऑफ स्लीप में, यानी कि सुलाने में बहुत अच्छा काम है क्योंकि सर्कैडियन रिदम बनाता है हमारा पिनियल ग्लैंड। तो ये थोड़ा सा देखना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। Sleep deprivation, forced lack of sleep experiment in the humans have shown that the subject experiences at first progressively increasing sluggishness of thoughts and later become markedly irritable. तो भाई स्लीप का काम क्या है फिजियोलॉजिकली, क्यों जरूरी है? वही जरूरी है क्योंकि अगर स्लीप नहीं करेगा आदमी तो क्या होगा? पहले तो स्लगिश हो जाएगा, फिर इरिटेबल होगा और फिर मेंटल कंफ्यूजन, साइकोसिस लाइक फीचर्स होने शुरू हो जाएंगे। इट सीम्स दैट स्लीप रिस्टोर्स बोथ नॉर्मल लेवल ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड नॉर्मल बैलेंस अमंग डिफरेंट हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीनियर। स्लीप बहुत जरूरी है आपका बिहेवियर, आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट माय पॉइंट? तो मैं थोड़ा सा बीच में मैंने छोड़ा है ये 3 या 4 स्लाइड्स, आप इसको देखो। अगर कुछ बात इसमें याद रखने की अगर ऐसा होगा तो मैं इसको हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा कि भाई क्या क्या याद रखने की है, अदरवाइज ये है स्लीप और इसको याद।